Hello students, welcome all of you to Sanjeevani Education Group. Hopefully all of you are fine. Let us move towards our topic, that is material, metals and non-metals. Okay, in previous lecture we have discussed about what is meant by material, means what is meant by matter, and how matter is classified into different groups, that is pure substances, mixtures. Again, pure substances are classified into elements and compounds, and elements are again classified into metals and non-metals. Basically in this chapter we are going to see the chemical and physical properties of metals and non-metals. It is a comparative study of metals and non-metals on the basis of their properties. उनके properties के basis पर ही हमें क्या करना है, differentiation करना है. Okay, and in today's lecture we are going to discuss about the physical properties of non-metals, because in previous lecture already we have discussed about the physical properties of metals. After discussion of the physical properties of non-metals, we have to compare between the physical properties of metals and non-metals, and then we can conclude that how physical properties is not a good criteria to differentiate between metals and non-metals. मतलब ये जो criteria है physical properties का, इसमें बहुत सारे exceptions आपको नज़र आएंगे और आप ये conclude कर पाएंगे कि ये एक अच्छा criteria नहीं है decide करने का. इसीलिए chemist होते हैं, chemical properties के basis पर ही हम metals और non-metals को क्या करते हैं, differentiate करते. So let us move towards our topic, that is physical properties of non-metals. Okay, so as we have studied the physical properties of metal, in similar way we have to study the physical properties of non-metal. So उसमें सबसे पहला क्या आएगा, physical state of the non-metal. Non-metal generally found in the gaseous form or in the solid form. Non-metal या तो gaseous form में होते हैं या फिर solid form में होते हैं. Exception है यहाँ पर, exception is ब्रोमीन. ब्रोमीन जो है तो वो क्या होता है, लिक्विड होता है. ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल. ठीक है, सो इट स्टार्ट विद द एक्सेप्शन. जैसे मर्क्यूरी जो है तो वो ऐसा मेटल है कि जो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. यहाँ पर ब्रोमीन जो है तो वो अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में. ओके, सेकेंड वन, अगर उसके हार्डनेस हम देखते हैं, हार्डनेस. ओके, सो वी नो दैट नॉन मेटल्स आर brittle. Non-metals क्या होते हैं, brittle होते हैं. Non-metals are generally brittle and can be easily converted into powder form. Okay, non-metals can be easily converted into powder form. Non-metals which are in the solid form, not in the gaseous form. The non-metals which are in the solid form or which are exist as a solid are brittle in nature and can be easily converted into powder. For example, sulfur, phosphorus, graphite, all these are the best example of the brittle non-metals. Okay, हाँ, अभी यहाँ पर भी एक हम कह सकते हैं एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन इज व्हाट, डायमंड. डायमंड इज वन ऑफ द एलाट्रॉप ऑफ कार्बन एंड इट इज द नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस. ओके, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस जो है तो वो कौन सा है, डायमंड है. बट डायमंड इज नथिंग बट द नॉन मेटल. ओके, सो देर इज वन ऑल्सो एक्सेप्शन. थर्ड वन इज द लस्टरनेस. ओके, सो ये कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं. These are non-lustrous. Okay, so non-lustrous, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम डायमंड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम आयोडीन का भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं. डायमंड एंड आयोडीन both are non-metals but having a great luster. Diamond can shine, all of you know that. Therefore diamond is a expensive. Okay, diamond क्या होता है, expensive होता है. फोर्थ वन, malleability and ductility. Malleability and ductility, we know that non-metals are neither malleable nor ductile. जो नॉन मेटल होते हैं वो malleable भी नहीं होते और ductile भी नहीं होते, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं होगी. They don't have any sort of ductility as well as malleability. Then the conductivity, bad conductor. Non-metals are generally bad conductor of heat and electricity.
Non-metals are generally bad conductor of heat and electricity, but there is another exception, that is graphite. Graphite is good conductor of heat and electricity, though it is of carbon. वो कार्बन से क्या होता है, बना होता है. ग्राफाइट इज नथिंग बट एलोट्रोप ऑफ कार्बन. सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक्सेप्शन है. नॉन मेटल्स कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड, सो दे डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस. वो जो सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, दैट द सब्सटेंस कैन प्रोड्यूस द साउंड, वो भी हमें नॉन मेटल में दिखाई नहीं देती. वाई? बिकॉज नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर. नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं. ठीक है. सो सी हियर, ये है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नाउ वी कैन रिकॉल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. हम मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते. सो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया स्टेट, वी नो दैट metals cannot be exist in gaseous form, but metals can be exist in solid form or liquid form. Hardness, we know that metals are hard, okay, while non-metals are brittle, but there is one exception. Diamond is the hardest substance. Okay, see here, in metal tungsten is the hardest metal, okay, but it has the melting point of 3380 degrees Celsius, while the diamond has the melting point of more than 3500 degrees Celsius. You see here, मेटल से भी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का ज़्यादा है. ओके, सो देयरफॉर देयर इज वन एक्सेप्शन हियर. ओके, लस्टर. ओके, so we know that metals have luster, but non-metals do not have luster. You can see diamond, iodine, graphite, they have a sort, what we can say, some sort of lusterness. They have some sort of shine. Okay, वो shine करते. So there is another one exception here. Malleability and ductility. Metals have malleability and ductility at a particular temperature or pressure condition. Okay, particular condition में उनकी malleability ductility होती है, but non-metals do not have the property of malleability and ductility because they can be easily converted into powder form. वो easily powder form में convert हो जाते हैं. ठीक है. Then the conductivity, we know that metals are good conductor of heat and electricity while non-metals are not. Now we are going to discuss why metals are good conductor of electricity and non-metals are not. मतलब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों नहीं होते और मेटल्स क्यों होते हैं. तो जनरली इफ यू अंडरस्टैंड हाउ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमेटिकली यू गेट एन आइडिया व्हाई नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ electricity. Okay, so let us move towards one question, that is why metals are good conductor of electricity. Okay, so let us move. This question can be asked. Okay, you should know about why metals are good conductor of electricity. So what is question? Why metals are good conductor of electricity. Okay, इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है. ओके, तो वी नो दैट व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी और व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और वी कैन कॉल इट एज अ फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर. इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, और इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं मतलब चार्ज भी क्या होता है, मूव होता है. नेगेटिव चार्ज क्या होता है, मूव होता है. ठीक है. अगेन वी नो दैट सब्सटेंस हैव टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, एंड इट इज नोन एज रेजिस्टेंस. उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं. व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस? एबिलिटी और टेंडेंसी टू रेजिस्ट the flow of charge. Okay, ये resistance होता है. If a substance has more resistance, okay, it cannot conduct electricity. अगर substance में resistance ability ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है. वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं कर पाता, कंडक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बट मेटल्स do not have that property. Metals की जो resistance power होती है, the resistance power of metal is quite less. Now the question arises, how
the flow of charge get resisted. Flow of charge resist क्यों होता है? Okay, there are number of factors. Okay, and the most important factor you should know, that is the nuclear charge. एक बेसिक फैक्टर है जो आपको समझ लेना है. न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इनटू द एटम ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कोई भी जो एटम होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस शेल के अंदर क्यों रहते हैं? वाई दे रोटेट इनटू द रिवॉल्व इनटू द शेल? बिकॉज देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. इफ न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर, then the electrons are tightly held by the nucleus and cannot flow. अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वो टाइटली हेल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन को और वो फ्लो नहीं कर पाएगा, मतलब बाहर जाएगा नहीं, वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा फ्लो करने का. ठीक है. सो नॉन मेटल्स में क्या होता है? जनरली नॉन मेटल्स हैव स्मॉलर साइज. नॉन मेटल्स की साइज जो होती है स्मॉलर होती है. नॉन मेटल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन, बट द न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो ग्रेटर. इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी ग्रेटर होते हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इनटू द सेम शेल एंड देयरफॉर दोज इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड towards the nucleus and cannot easily flow. Means non-metals does not have any free or mobile electron for the flow. Okay, and therefore non-metals cannot conduct electricity. But why metals can conduct electricity? So metal जो होते हैं तो metal की size क्या होती है? ज़्यादा होती है. and generally metals के outermost shell में, valence shell of metal contains 1, 2 or 3 electrons. जनरली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के वैलेंस शेल में, यस, वैलेंस शेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसर्न. ओके, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में जब हायर स्टडीज होगी हमारी, इफ यू एंटर इनटू द 9th and 10th क्लास, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय कंडक्शन बैंड, व्हाट इज मीन बाय वैलेंस बैंड. बट फिलहाल में इतना ही ध्यान में रखना आपको. यू शुड रिमेंबर दिस, मेटल्स हैव 1, 2 or 3 electrons into the valence shell and these electrons are not tightly held by the nucleus. न्यूक्लियस इसको ज़्यादा टाइटली हेल्ड नहीं कर पाता है. इसमें कुछ मेटल्स है एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है. वाई? बिकॉज देयर साइज इज स्मॉल, उनकी साइज कम है तो इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर इफेक्टिव होता है. लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे आयरन है, कॉपर है, इनकी साइज ज़्यादा होती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कम हो जाता है. एंड देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ये कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस ऑन देम. न्यूक्लियस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. एंड व्हेन सच इलेक्ट्रॉन्स are motivated, okay, or bring into the motion due to the electromotive force, EMF जिसको हम कहते हैं. EMF जब उनको मिलता है, मतलब बैटरी से देंगे या फिर हम उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे. सो अगर उनको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाता है देन दे स्टार्ट टू फ्लो. वो एक फ्लो होना, एक डायरेक्शन में फ्लो होना क्या होता है? स्टार्ट हो जाते हैं. एंड दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द electricity or electric current, and therefore metals are considered as good conductor of electricity. If you want to explain why metals are good conductor of electricity in one sentence, then you can say that metal contains free or mobile electrons into their valence shell and therefore those electrons are available for the movement. Okay, those electrons are available for the flow of charge and therefore metals are good conductor of इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. सो होप कि आपको ये जो आइडिया है क्लियर हो गया होगा व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड सिमिलर क्राइटेरिया यू कैन यूज फॉर द हीट ऑल्सो. ओके, हीट के लिए भी आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जब मूव होते हैं तो हीट के लिए जो फिनोमिनॉन है, देखिए हीट के लिए कन्वेक्शन फिनोमिनॉन हम यूज करते हैं. कन्वेक्शन होता है, देखिए एनर्जी जब ट्रांसफर होती है ना तो अलग अलग टाइप में होती है. ठीक है, कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है, अलग अलग पार्ट है. यू कैन लर्न इन टू द फिजिक्स. बट हियर द इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड during the heat it transfer in the form of temperature or heat or energy. These are the forms of energy. So basically the idea about the conductivity of the metals and non-conductivity of the non-metals get cleared. Now one question is there, why graphite is good conductor of electricity? Graphite good conductor क्यों होता है?
जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर दिया है आपको कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट जो होता है, तो ग्रेफाइट की अरेंजमेंट डायमंड के जैसे टाइट नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है, ब्रिटल होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट लेयर के फॉर्म में होता है, और ग्रेफाइट में हर एक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है तो फ्री होता है, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन टू द विसिनिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। विसिनिटी मीन्स ईच एंड एवरी सॉलिड हैज सम सॉर्ट ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ओके और उस विसिनिटी में, उस इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस होती है ना, उसको विसिनिटी कहते हैं। इन दैट विसिनिटी दोज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, okay, because those are not attracted by any one of the nucleus, and those electrons are available for the movement. And when we provide electromotive force for the graphite, those electrons start to move and they can conduct electricity. वो electricity क्या कर सकते हैं, conduct कर सकते हैं. So this is all about the physical properties of metals and non-metals, and already we have differentiate between physical properties of metals and non-metals. After the discussion of all these physical properties, we can conclude that there is exception for each case. हर एक केस के लिए क्या है, एक्सेप्शन है। हर एक क्राइटेरिया जो हमने देखा है, हर एक फैक्टर हमने यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की, हर एक फैक्टर में कुछ ना कुछ, अगर एक्सेप्ट मलाबिलिटी एंड डक्टिलिटी, हमें एक दिखाई देता है कि एक्सेप्शन है ही है। मतलब अगर हम कहते हैं कि मेटल्स आर हार्ड, तो डायमंड का एग्जांपल देंगे, डायमंड तो नॉन मेटल है, फिर भी वो हार्ड है, ओके। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लस्टर की बात करते हैं, मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी टू शाइन, ओके, मतलब उनमें लस्टरनेस होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ नॉन मेटल्स भी है, जैसे डायमंड है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है, इनको भी लस्टर होता है। सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज of metals and non-metals is not good criteria to differentiate them. मैं बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि केमिकल प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ओके। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर we are going to discuss about the chemical properties of metals and non-metals, okay. For today it's okay.